Welcome students. So we are solving some numericals from the mechanical properties of fluids. So let's see problem number 14. Okay, first I will read the problem. With what terminal velocity will an air bubble 0.4 millimeter in a diameter rise in a liquid of viscosity 0.1 ns per meter square and specific gravity 0.9. Density of air is 1.29 kilogram per meter cube. Okay, so first what they have given us, we will write that. So diameter of bubble is 0.4 millimeter. Okay, 0.4 millimeter. And eta, that is coefficient of viscosity, is 0.1 ns per meter square. Specific gravity, okay, that is 0.9. Density of air that is rho, 1.29 kilogram per meter cube. Okay, so we have to find the velocity here. So first we have to understand, in this case they have given us diameter, so we will convert it into radius. So basically radius is half of diameter, so it will be 0.4 divided by 2, that is 0.2 millimeter, and this is 0.2 into 10 to the power minus 3 meter. So you can write r is equal to 2 into 10 to the power minus 4 meter. So first we have the value of r from that diameter. Okay, then what is this eta? Eta is a coefficient of viscosity. Specific gravity is 0.9. Okay, so what is basically the formula for specific gravity? See here, specific gravity is equal to density of liquid upon density of water. ओके, यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो हम यहाँ पे सिग्मा से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे. ओके, सो दिस इज सिग्मा. डेंसिटी ऑफ वाटर का वैल्यू हमें मालूम है, वो वैल्यू आपको याद रखना है, दैट इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर हम बहुत बार प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं, उसका वैल्यू होता है 1000. एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9. ओके, so from that you can write sigma is equal to 0.9 into 1000. So from this sigma is 900. okay, ये जो डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम था that is liquid, and that density of liquid we denoted it by sigma. This is the symbol of sigma. So sigma is equal to 0.9 into 1000, so that gives us 900. okay, so first note down this value is important to solve, to find the given velocity. Now we have to find the velocity. okay, अभी हमें क्या करने का है, velocity का वैल्यू फाइंड करने का है. so first I will note down this value here. ये वैल्यू इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज 900. So to find the velocity, just we have a formula
that is v is equal to 2 by 9 r square rho minus sigma into g divided by eta. So this is the formula. V is equal to 2 by 9 r square rho minus sigma into g upon eta. Okay, from this we can find the velocity when we know the coefficient of viscosity, density and sigma. So we have all these other value. So now need to just put the given values here. Okay, so here you can write v is equal to 2 by 9. Now put the value of r. क्या है r का वैल्यू? 2 into 10 to the power minus 4 का स्क्वायर into here rho is 1.29 minus 900 into 9.8 divided by eta is 0.1. 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 to the power minus 1. So I will write here 10 to the power minus 1. So in next step we can write here is v. So 2 by 9 into just now need to square it. Okay, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 10 to the power minus 8 into divided by यह क्या है यहाँ पे 10 to the power minus 1. Okay, now 1.29 minus 900 क्या होगा यहाँ पे? So you can write here 900.00 1.29. So 10 minus 9 that is 1, 9 minus 2 that is 7, 9 minus 1 that is 8, 9 minus 0 that is 9 and here 8. Okay, so 8.7. Okay, this is the value. But यहाँ पे क्या है? ये जो 900 माइनस है. Okay, so we can write this as minus 898.7. Okay, अभी यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका हम यहाँ पे डिवीजन भी कर सकते हैं. तो डायरेक्टली हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे इसका डिवीजन कर सकते हैं. सो नाउ आई एम डिवाइडिंग. सो 9.8 डिवाइडेड बाय 9 ये हम अभी सॉल्व कर रहे हैं. सो 9 1 जा 9. ओके, पॉइंट यहाँ पे 0 लेके यहाँ पे 0 लिख सकते हैं. 9 8 जा 72. सो दिस 8 विल कम अगेन एंड अगेन. सो वी हैव 1.0888. Okay, so in next step you can see here I have just divided 9.8 by 9. Now you can write 2 into 4 that is 8. This is 10 to the power minus 8 into ये minus 1 है, ऊपर आने के बाद plus 1, 10 to the power plus 1 into minus 898.7. ये मल्टीप्लिकेशन में है, नेगेटिव साइन आया है क्योंकि हमने स्मॉल डिजिट से जो बड़ा डिजिट है उसको माइनस किया था, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है. सो इनटू क्या है? 1.0888. ओके, सो फर्स्ट राइट डाउन दिस वैल्यूज केयरफुली. Okay, so now you have to use the log table. So by using log table you will get 7828 into 10 to the power minus 7 मीटर पर सेकंड. अभी आपको सिंपली क्या करने का है? 8 से ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करने का है और इसको 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का लॉग का यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन करने का है. एंड दिस -8 and +1 that will be 10 to the power -7.
यहाँ पे नेगेटिव साइन मिलेगा हमें, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में कौन सा साइन था, नेगेटिव साइन था. ओके, सो व्हाट दिस नेगेटिव साइन शोज दैट, this negative sign shows us that this bubble will rise up. ये बबल क्या होगा, ओ लिक्विड में ऊपर जाएगा. बट इन केस ऑफ लिक्विड ड्रॉप क्या मिलता है, हमें पॉजिटिव साइन मिलता है, क्योंकि लिक्विड ड्रॉप क्या हो जाएगा, नीचे आएगा. लेकिन इन केस ऑफ बबल दैट नेगेटिव साइन शोज अस दिस बबल इज गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो दिस इज अवर आंसर, -7828 into 10 to the power -7 meter per second. Okay. Now we will see the next problem. So problem number 15. The speed of water is 2 meter per second through a pipe of internal diameter 10 centimeter. What should be the internal diameter of nozzle of the pipe if the speed of water at nozzle is 4 meter per second? See, first they have given us speed. So first speed I will write, that is V1. Okay, V1 का वैल्यू क्या है, 2 मीटर पर सेकंड. यहाँ पे जो इंटरनल डायमीटर का वैल्यू है, वो जो वैल्यू है D1 क्या है, 10 सेंटीमीटर. ओके, नाउ next, what should be the internal diameter of nozzle? So we have to find the value of D2. और वहाँ पे जो सेकंड जो वेलोसिटी जो हमें दिया है V2, वो क्या है, 4 मीटर पर सेकंड. ओके, सो नोट डाउन दिस केयरफुली. सी, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट डायमीटर है. ये जो डायमीटर है उसको मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट करूँगा मीटर किसमें, रेडियस में. तो क्या होगा यहाँ पे, दिस देयरफॉर R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू D1/2. ओके, R1 इज इक्वल टू D1/2. अभी आप देख सकते हैं कि ये D1 का वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5 सेंटीमीटर, मीन्स 5 into 10 to the power -2 मीटर. So by using equation of continuity, you can write here A1 V1 is equal to A2 V2. Okay, so very easy problem, just we have to find the diameter. For that I will find the radius. अभी यहाँ पे आपको रेडियस कहाँ मिल रहा है, जो एरिया है वही हमें क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा. सो व्हाट इज़ द एरिया, दैट इज पाई R1 स्क्वायर इंटू V1 एंड हियर पाई R2 स्क्वायर V2. ओके, ये पाई पाई क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है. हमें क्या फाइंड करने का है, D2 का वैल्यू फाइंड करने का है. ओके, so first when we are getting R2, that time you can easily find D2. So for R2 square, this will be R1 square V1 upon V2. Okay, now just need to put the values. Okay, next step में यहाँ पे लिखूँगा. So R2 square is equal to, what is the value of R1, that is 5 into 10 to the power -2 square into V1 का वैल्यू क्या है, 2 है, डिवाइडेड बाय V2 का वैल्यू क्या है, 4. ओके, V2 का वैल्यू क्या है, 4.
Now just square this, so you will get 25 into 10 to the power minus 4. ओके, नाउ अभी इसका डिवीजन करने के बाद यहाँ पे कितना मिलेगा हमें 2, ये 2 टू ज़ा 4. ओके, सो नीचे क्या मिला है हमें 2 मिला है. सो दिस इज R2 स्क्वेयर. नाउ यू हैव, इसका जो डिवीजन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, R2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 12.5 into 10 to the power minus 4. Okay, so therefore R2 is equal to square root of 12.5 into 10 to the power minus 4. Okay, now you can see here, now you have to take the square root of R2. ये 10 to the power minus 4 है, स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद ये क्या मिलेगा 10 to the power minus 2. ओके, अभी हमें लॉग का यूज़ करके, लॉग में हमें एक कॉलम है, एक पेज है, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट फ्रॉम 10 to 100 में 12 का हमें क्या देखने का है, 5 में स्क्वायर रूट देखने का है. ओके, सो लेट्स सी इन लॉग टेबल, 12 का स्क्वायर रूट हम देखेंगे 5 में. दैट इज 3.536. ओके, 3.536. ओके, दिस विल बी इन अ मीटर. अभी D2 किस तरह से फाइंड करेंगे हम, डायमीटर के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू R2. सो 2 इंटू 3.536 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 1 2 3 ज़ा 6 एंड दिस इज 7, 2 5 ज़ा 10, 1 2 3 ज़ा 6 एंड दिस वन. So 7.072 into 10 to the power minus 2 meter. So this is our answer. Okay, D2 is equal to 7.072 10 to the power minus 2 meter. Okay, so ये हमें क्या मिला है, आंसर मिला है. So let's see our next problem. Number 16. With what velocity does water flow out of an orifice in a tank with gauge pressure 4 into 10 to the power 5 Newton per meter square? Before the flow starts, density of water is 1000 kilogram per meter cube. Okay, with what velocity does water flow out of an orifice in a tank with gauge pressure? सो फर्स्ट वैल्यू है गेज प्रेशर. ओके, गेज प्रेशर का जो वैल्यू है वो है 4 इंटू 10 टू द पावर 5. ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर. बिफोर द फ्लो स्टार्ट्स, ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर मालूम है हमें, रो से हम दिखाएंगे, वो है 1000 kilogram per meter cube. Okay, with what velocity? So we have to find V. Okay, very easy problem. First you have to understand what is gauge pressure. अभी हमें जो गेज प्रेशर है वो क्या होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा और तब हमें जो प्रेशर मिलेगा, हमें उसे क्या कंसीडर करने का है, गेज प्रेशर. So in case of gauge pressure you can write, okay, gauge pressure
जो फॉर्मूला था हमारे पास, ओके, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या है वो फार्मूला? एच रो जी, ओके, गेज प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। फ्रॉम दैट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। क्या होगा यहाँ पे? गेज प्रेशर डिवाइडेड बाय रो जी। अभी हमारे पास इक्वेशन है V इज इक्वल टू √2GH, ओके, ये इक्वेशन हमारे पास है। तो ये इक्वेशन का यूज़ करके आप क्या करेंगे? वेलोसिटी फाइंड करेंगे, ओके। सो वेरी इजी। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू। ये जो 2 है यहाँ पे G है। H के लिए क्या है हमारे पास? गेज प्रेशर इंटू रो जी, ओके, गेज, this G for gauge, your gauge pressure upon rho G, okay. So now this G and G will get cancel. So we have V is equal to, I will write here, okay. So V is equal to क्या होगा? रूट गेज प्रेशर अपॉन डेंसिटी, √2 इंटू, अभी वैल्यूज पुट करेंगे हम। गेज प्रेशर का वैल्यू क्या है? 4 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय रो का वैल्यू क्या है? 1000 मीन्स क्या होता है? 10⁻³ होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। सो हियर 10⁻³। नाउ यू कैन राइट V इज इक्वल टू 2 इंटू 4 दैट इज 8। ये 3 ऊपर जाने के बाद माइनस होने वाला है, तो हमें क्या मिलने वाला है? 10⁻² मिलेगा, ओके। सो फॉर दिस यू कैन राइट, ये जो वैल्यू है इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 4 इंटू 10⁻², ओके। सो ये 4 का जो स्क्वायर रूट है वो मिलेगा हमें 2, यहाँ पे होगा √2 और यहाँ पे क्या होगा? 10⁻² बाहर आने के बाद 10⁻1, ओके। सो नाउ यू कैन राइट 2 इंटू, ये जो √2 का वैल्यू है स्क्वायर रूट में हमने बहुत बार यूज़ किया है, दैट इज़ 1.414 इंटू 10⁻1। जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दिस। सो 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2 into 10⁻1. So we have 28.28 meter per second. So this is our answer, 28.28 meter per second. So you are not getting the last step. So in last step you can write here only, क्या है लास्ट का स्टेप यहाँ पे? 28.28 मीटर पर सेकंड। कुछ नहीं, यहाँ पे एक डिजिट से हमें क्या करने का है? डेसिमल पॉइंट आगे बढ़ाने का है। सो दिस इज अवर आंसर, दैट इज 28.28 मीटर पर सेकंड। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। Problem number 17. Yes, problem number 17. The pressure of water inside the closed pipe is 3 into 10⁵ Newton per meter square. The pressure of water inside the closed pipe is 3 into 10⁵ Newton per meter square. This pressure reduces, कम हो रहा है, reduce होने, to 10⁵ Newton per meter square on opening the value of the pipe. On opening the valve of the pipe, calculate the speed of the water flowing through the pipe. Okay.
So first here you have to understand that the first value is P1. ये जो P1 का वैल्यू है वो है 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो P2 का वैल्यू है वो है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप। सी इनिशियली द V1 क्या होगा, 0 होगा। जहाँ पे ये जो वॉल्व है, वॉल्व क्या होता है जब हम ऑन ऑफ करते हैं, जो वही है क्या होता है, वॉल्व होता है। सो द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड द क्लोज पाइप कितना था, 3 × 10⁵। लेकिन उस टाइम क्या होगा, वो पाइप कैसा है, क्लोज है। ओके, पाइप क्या है वहाँ पे, क्लोज है। तो पाइप जब क्लोज होगा तो जो वाटर होगा वो क्या होगा, रेस्ट कंडीशन में होगा, तो उसका वेलोसिटी 0 होगा, इसलिए V1 का वैल्यू है 0। दिस प्रेशर रिड्यूसेस, कम हो रहा है प्रेशर, 2 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑन ओपनिंग द वॉल्व ऑफ द पाइप। वो जो वॉल्व हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तब इसका जो प्रेशर का वैल्यू कम हो रहा है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप। हमें क्या फाइंड करने का है, V2 का वैल्यू फाइंड करने का है जब ये वाटर क्या होगा, मोशन में होगा। तब डेंसिटी ऑफ वाटर वी नो दैट रो इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम per meter cube. Very easy problem. First note down this. So by using Bernoulli's principle we can write P1 plus half rho V1 square is equal to P2 plus half rho V2 square. So from this you can write here, put the values. What is the value of P1? P1 का वैल्यू क्या है, 3 × 10⁵ प्लस, अभी ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे जो V1 है, सी बोथ साइड जो रो है वो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर होगा। लेकिन डेंसिटी ऑफ वाटर जो भी होगा, ये V1 का वैल्यू क्या है, 0 है। 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। सो यहाँ पे तो ये गया पूरा, यहाँ पे मिलेगा हमें 0। P2 का वैल्यू क्या है, 2 × 10⁵ प्लस हाफ रो का वैल्यू क्या है, 10⁻3। We know that this can be written as 10⁻3। V2 का वैल्यू क्या है, ये तो हमें फाइंड करने का है। ओके, V2 का स्क्वायर है यहाँ पे। So now very easy, here is a 3 × 10⁵. Okay, this plus this means this, and ये यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे 2 × 10⁵ मिलेगा। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, हाफ इंटू 10⁻3 इंटू V2 का स्क्वायर। ओके, सो 3 - 2 क्या होगा, 1। ये 10⁻5 कॉमन निकलेंगे यहाँ पे। सो वी हैव हियर 10⁻5, हियर इज हाफ इंटू 10⁻3 इंटू V2 स्क्वायर। ओके, सो see what will happen here. See V2 square is equal to, अभी ये जो 2 है ये ऊपर जाएंगे यहाँ पे, 10⁻5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10⁻3। सो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 10⁻2। ये 10⁻3 ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ओके, सो 5 - 3 क्या होगा, 10⁻2। अभी आपको क्या फाइंड करने का है, V2 का वैल्यू फाइंड करने का है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट हम ले रहे हैं। सो 2 × 10⁻2 मीन्स √2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1.414। लॉग टेबल में आप देख सकते हैं मैक्सिमम टाइम हमें ये वैल्यू यूज़ करना पड़ता है।
√2 क्या वैल्यू है 1.414 और 10 टू द पावर 2 दैट इज 10, बाहर आने के बाद क्या होगा, ये 10 होगा. सो आवर आंसर इज 14.14 मीटर पर सेकंड. सो दिस इज द our answer. V2 is equal to 14.14 meter per second. Okay, so this is the answer of our problem number 17. Okay, I hope you like this video, and do like this video, share and subscribe our channel. Just share this channel with the students of class 11 and 12th students. Okay, thank you.